Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. Pallav this side from IIM Ahmedabad. So in this video, we will basically talk about what you should do in the next 3 months to target 95 or 99 percentile, right, in the LRDI section. Before starting the video, I want to clear a lot of doubts, a lot of myths around the LRDI section of the CAT, and then we will discuss what should be your study plan for the upcoming 3 months, what should be your daily targets for the upcoming 3 months to ensure that you are at least scoring 95 consistently in your mocks. Why I am not differentiating between 95 and 99 percentile? The reason is that when you compare the raw score between 95 and 99 percentile, there is a very less difference as compared to other two sections, right? So if you are crossing the barrier of 95 percentile in the mocks consistently, then it will take very little effort from your side to cross the 99 percentile mark, right? And from the 99 percentile to reach 99.9, you will require a lot of efforts, right? But to reach 99 from 95, right, it would be just a very small efforts or maybe 1-2 questions correct, right? So our focus should be on the raw score, not on the percentile, right? But we will also make sure that at least we are scoring 95 consistently in the mocks. The biggest problem that a lot of candidates, including me, face is about the fluctuations of score in the LRDI section, right? Plus LRDI doesn't differentiate much between the one person who has covered every topic, has done a lot of, I would say, topic tests, and between the other person who has not prepared for the topics for the LRDI, right? If you analyze the last 2-3 slots of CAT 2023, CAT 2022, you will feel that there were very few questions that came directly from some specific topics. Earlier, there used to be case that 1 or 2 sets used to come from either from set theory, from games and tournaments, or from some other topics. But now the paper is evolving, the type of questions are being evolved, right? Now you will feel that you, in every CAT attempt, in every slot, you get some different types of sets, right? And generally people don't have any knowledge, right? People have their logic cleared, right? People have practice on their hands, people have their experience with the mocks, but generally जो sets आते हैं in the actual CAT, right, they are completely new sets. They give you a new situation. They basically put you in a new situation, in a new story, and from that story you have to come to a particular solution, right, according to the questions asked, right? So basically we will first discuss कि candidates क्या क्या problems face करते हैं when it comes to the LRDI. Then we will talk about the next 3 months plan, right? First, I want to make it very clear that it doesn't matter a lot at this point of time whether you have started for the LRDI or whether you haven't, whether you are scoring 99 or you are scoring single digit score in the mocks, right? Whether you are overconfident or underconfident, whether you are getting consistent score or you have a lot of fluctuations in the LRDI score, right? The reason for this is that we have 3 months, and believe me, if you become consistent for the next 3 months, you are doing daily targets, you are doing 3-4 sets per day, believe me, you will notice a significant change in your percentile, in your marks, and in your approach, right? Let's first discuss the problems. The major problems that candidate face is about the set selection, right? काफी लोगों को यही नहीं पता लगता कि यार कौन सा सेट पहले सिलेक्ट करना है, and often it happens कि after the mock they realize कि यार अगर मैं ये सेट सिलेक्ट करता, राइट, अगर मैं सेट सिलेक्शन सही कर लेता तो मेरा 1-2 सेट आराम से सोल्व हो जाते इन 40 मिनट्स. बिलीव मी, 40 मिनट्स आई वुड से इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम जहां पे अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपको लगेगा 40 मिनट्स इज मोर देन इनफ, है ना? अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो यू विल फील कि यार 40 मिनट्स में मेरा एक भी सेट नहीं हुआ. बट you just need to think, right? अगर आप कोई भी मॉक के लिए अपीयर करते हो, सिम कैट, CDC या एक्चुअल कैट क्वेश्चंस के लिए, है ना, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 40 मिनट में कोई एक सेट उठा के करना पाओ, राइट? नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप जब अपीयर कर रहे हो आपका माइंड सेट क्या है ना? when you have picked one set and you are not able to do that set in the next 10-15 minutes and now you have around 20 minutes in hand, what's going on in your mind, right? How you should tackle these type of situations. So first you need to be aware about all these problems कि अगर by chance CAT में ऐसा हो गया कि मेरे पहले 20 मिनट में कोई भी सेट सोल्व नहीं हुआ, right? Then what I will do in the next 20 minutes? How will I ensure कि I am scoring 95 in the next 20 minutes, right? And if you appear for more and more number of sectionals, more and more number of mocks, you will realize कि these situations do happen and these situations do happen often. राइट, ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ होती नहीं है. अगर आपके साथ नहीं हो रही है, राइट, मे बी यू माइट बी फेसिंग सम अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट? बट जो बेसिक प्रॉब्लम कैंडिडेट्स के साथ होती है वो या तो सेट सिलेक्शन की होती है, या होती है टाइम मैनेजमेंट की, या होती है कंट्रोल ऑन देयर नर्व्स, राइट? अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फेल टू कंट्रोल देयर नर्व्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक, एंड सिर्फ उसी वजह से दे फेल टू इवन सॉल्व 1 or 2 सेट्स, राइट?
तो पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। दूसरा हम थोड़ा सा कैट के पास्ट ईयर पे देखेंगे, राइट। इफ यू जस्ट टेक अ लुक फ्रॉम द 2017 ऑनवर्ड्स, कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जहां पे आपके 2 सेट्स इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। हर एग्जाम में 2 सेट्स इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे थे, राइट। इफ आई टॉक अबाउट 2023, in all the 3 slots you will see कि at least 2 sets were doable, right? Why people were not able to, a lot of people were not able to do the 2 sets also? The reason was that a lot of candidates have some misconception or I would say some biasness in their mind कि जो कैट में DLR आता है वो तो हार्ड ही आता है। वो उस माइंडसेट से एग्जाम देने गए एंड जब एग्जाम में उन्होंने इजी सेट्स देखे तो उनको लगा कि इसमें कुछ कैच होगा, हम ये अटेम्प्ट करते ही नहीं है, राइट। सो थोड़ा सा सोल्यूशन बता देता हूँ मैं ये प्रॉब्लम्स का, राइट। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं सेट सिलेक्शन कैसे करता था। सेट सिलेक्शन के लिए आई ऑलवेज यूज्ड टू इन्वेस्ट फर्स्ट 5 to 6 minutes into reading the all 4 sets, राइट। मैं चारों सेट्स को कंप्लीटली पढ़ता था। मैं उनके क्वेश्चंस भी देखता था। बिलीव मी, क्वेश्चंस गिव यू ह्यूज हिंट अबाउट द अप्रोच यू नीड टू फॉलो फॉर दैट पर्टिकुलर सेट। अगर मान लो क्वेश्चंस इफ बट्स वाले तो आपको पता लगेगा कि 2-3 केस बन रहे हैं। अगर क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक है तो आपको पता लगेगा कि अगर केस भी बन रहे हैं तो मेरा कोई एक ऐसा स्पेसिफिक केस बनेगा जिससे मेरे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। एंड ऑफन टाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि आप लोग ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सोल्व्ड जस्ट 60% ऑफ द सेट, वहां से भी आपके 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, राइट। यू डोंट नीड टू इवन कंप्लीट द 100% ऑफ द सेट, राइट। एंड जो सेकंड आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, राइट, कि थोड़ा सा अपने आप को अंडर टाइम प्रेशर पुट करके सेट को सोल्व करो, राइट। एक तो होता है कि आपने स्टॉप वॉच लगा दी मोबाइल पे, दैट बेयरली हेल्प्स। अगर हो सकता है तो कोई टॉपिक टेस्ट दो, कोई सेक्शनल्स दो, कोई मॉक्स दो जहां पे टाइमर ऑलरेडी पोर्टल पे चल रहा हो, राइट। उसके बाद वहां पे अपने आप को टाइम प्रेशर में देखोगे तो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आपकी स्पीड क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व कि आप 20 मिनट्स में एक सेट सोल्व कर लेते हो, राइट। आई डोंट विश कि इट हैपन्स विद यू, बट इन केस लेट्स से इट हैपन्स कि कैट में आपने पहले 20 मिनट में आप कुछ नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में एटलीस्ट आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं एक सेट तो निकाल लूंगा। एंड बिलीव मी, एक सेट निकालना भी अच्छी बात है, परसेंटेज अच्छी आ जाएगी, एटलीस्ट आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड थिंग, सेट सिलेक्शन में आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर लिख लेना है नोटबुक में। व्हेन यू आर रीडिंग द सेट, मेक श्योर यू आर कंप्लीटली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सेट। अगर सिर्फ हवा में ऊपर से सेट को देख लिया ना, देन ऑल्सो यू आर कमिटिंग अ बिग मिस्टेक। द रीजन फॉर दैट इज कि कई बार सेट हमें देखने में लगता है बहुत हार्ड है और वो एक्चुअल में बहुत इजी होता है, और कई बार हमें लगता है कि सेट बहुत इजी है और एक्चुअल में काफी हार्ड होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि डोंट मेक योरसेल्फ स्टिक विद सम पर्टिकुलर सेट, राइट। काफी बार ये होता है कि हमारे, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट, वी टाई टू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर मान लो मैंने अरेंजमेंट का सेट देखा, मुझे अरेंजमेंट अच्छे से आता है, तो मुझे लगता है यार ये तो मैं सेट करके ही रहूंगा, या मैंने कोई मैट्रिक्स का सेट देखा, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पहले 7-8 मिनट आपने लगा दी और आप बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, देन डोंट थिंक कि अगर मैं नेक्स्ट 4 मिनट्स और देता हूं तो शायद मैं कुछ प्रोग्रेस कर लूं। फिर आप 12 मिनट वेस्ट कर दोगे, फिर आप सोचोगे कि मैं 4 मिनट और भी दे देता हूं इस सेट को, राइट। डोंट गो बाय दिस। अगर आपको 8-9 मिनट 10 मिनट एक सेट पे लग गए एंड इफ यू फाइंड योरसेल्फ कि वो नहीं हो रहा है ना, डोंट फील कि दैट 10 मिनट इज वेस्टेड, राइट। एटलीस्ट नाउ यू हैव सम आइडिया अबाउट दैट सेट इन योर माइंड। एक बार उसको सेट को छोड़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट सेट अटेम्प्ट करो, राइट। व्हेन यू कंप्लीट द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो वो सेट पे आओ, एंड इट हैपन्स इन 80% ऑफ द केसेस कि बाद में वो सेट सोल्व हो जाता है, राइट। बिकॉज व्हेन यू कम टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपका थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, राइट। अगर आप कंटिन्यूअसली उसको 20 मिनट में सोचे जा रहे हो और कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे ना, तो आपका माइंड एक सिंगल डायरेक्शन में चलता रहता है, राइट। वो काफी और पॉसिबिलिटीज को सोच नहीं पाता। सेकंड मेजर रीजन है जो सेट सोल्व नहीं होते काफी लोगों से, एक रीजन और होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है ना उसको डीकोड नहीं कर पाते अच्छे से, या समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम इंफॉर्मेशन को पढ़ ही नहीं पाते, है ना। जैसे मेरे साथ बहुत बार केस होता था कि मैं एक आधी लाइन बीच में छोड़ देता था, मतलब छूट जाती थी मेरे से, राइट। तो उस वजह से सेट मेरा अटक जाता था बीच में। सेकंड प्रॉब्लम वाज कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी है एलआरडीए में, हर इंफॉर्मेशन की एक इंपॉर्टेंस होती है, उसको यूटिलाइज करो। मेक श्योर कि वो इंपॉर्टेंस, जैसे आपको एक लाइन में दिया होगा, है ना, उसको ग्राफिकल वे में आप कन्वर्ट करके अपनी शीट पे कहीं पे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, राइट। द थर्ड टिप फ्रॉम माय साइड वुड बी कि कभी भी केस बनाने में, राइट, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, राइट। दिस वाज द प्रॉब्लम विद मी। जब भी मुझे लगता था कि यार ये क्वेश्चन में 5-6 केस बनेंगे, है ना, मैं थोड़ा सा लेजी हो जाता था, मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को अवॉइड करता था। बट ओवर द टाइम आई रियलाइज कि अगर 5 केस बनाने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, राइट, एंड वो 5 केस बना के मुझे पूरी श्योरिटी है कि मेरा आंसर ये होगा, मेरा आंसर ये होगा, है ना, तो गो विद द केसेस, राइट। फोर्थ टिप वुड बी कि अपने जो भी रफ नोट्स हैं, जो भी आपका सॉल्विंग का तरीका है, उसको इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, एज इन उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना स्टार्ट कर दो, एंड मेक श्योर you are not making a lot of mistakes while noting down the information or while solving the set in your notebook. Why I am saying this?
और इसकी आदत अभी से डाल लो। काफ़ी लोग टैब वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि पेन एंड पेपर से स्टार्ट कर दो अब सोल्व करना। बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज, पहली बात तो आपको जो नोटबुक वहाँ मिलेगी, जो नोट पैड, उस पर लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होते हैं और उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। मतलब उसका साइज़ आई थिंक यार काफ़ी छोटा होता है, बिल्कुल एक छोटा सा नोट पैड होता है ना। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व LRDI सेट ऑन दैट नोट पैड, बट स्टिल आपको करना है, आपको करना तो पड़ेगा, राइट। अगर फिर भी आपका नोट डाउन करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, राइट, तो आपकी शीट में आपको ही पता नहीं लगेगा कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ नोट कर रहे हो। एंड ऑफन इट हैपन्स कि वहाँ पे जो उनका एक पेज होता है, मतलब ऐसे खोलोगे तो 2 पेज, उस पर भी सेट पूरा नहीं आता है ना। समटाइम्स यू हैव टू टर्न द पेज एंड यू हैव टू नोट अनदर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, राइट। अगर उसमें आपका नीट एंड क्लीन तरीका नहीं है, आपको बार बार दोबारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ रहा है सेट में, है ना, फिर अपनी नोटबुक पे आना पड़ रहा है, अगर उस केस में आपने कुछ गलती कर दी, बिलीव मी, आपका माइंडसेट वहाँ पे इतना खराब हो जाएगा ना कि देन चाह के भी आप कम बैक नहीं कर सकते, राइट। एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू कमिट सच मिस्टेक्स बिकॉज इट हैपन्स एवरी ईयर विद अ लॉट ऑफ टॉपर्स, विद अ लॉट ऑफ गुड कैंडिडेट्स, राइट। नाउ आई डोंट वांट कि आपके साथ ऐसा हो, राइट। वी स्टिल हैव कंप्लीट 90 डेज, 90 डेज इज मोर देन इनफ। उसमें आप अभी कोई भी लेवल पे हो, है ना। क्वांट्स एंड VRs में थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, बट LRDI में आई बिलीव कि हर बच्चा एक डिसेंट लेवल पे होता है, उसको कॉमन इंग्लिश, है ना, उसको कॉमन लॉजिक समझ आता है, राइट। समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच द सेट, वो हम सीख लेंगे आने वाले 30, 90, 60 डेज में, राइट। बट मेन जो हमारी गलतियां, मेक श्योर आप वो नहीं कर रहे। व्हेनेवर यू आर अपीयरिंग फॉर सिमकैट CDC, मेक श्योर यू हैव दीज स्मॉल थिंग्स इन योर माइंड, राइट। अगर नहीं भी है ना, तो एक पेपर पे, चार्ट पे लगा के अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के सामने रख दो, सो दैट वाइल सॉल्विंग द DLR सेक्शन कीप लुकिंग एट दोज इन्फोज, राइट। आई मीन what I used to do was I had a notebook, है ना, मैं उस पर लिख लेता था कि अगर मेरा 7-8 मिनट में सेट सोल्व नहीं हो रहा, then I will surely switch to some other set, and believe me it worked for me। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, CAT 2023 स्लॉट 3 में जब मैं अपीयर हुआ, I cracked first set within first 10 minutes, then I switched to the second set, right। Somehow I was not able to crack the second set in another 10 minutes, then I had just 20 minutes and I had 3 sets to solve, right। Then I moved to the third set, I cracked that third set within 8 minutes, right। And then in the next 6 minutes I cracked the set which I chose earlier, right, which I left earlier, right। And in the last 4 minutes I cracked the networks and diagram set, that was one of the easiest set, but वो मैंने 4th अपना चॉइस रखा, right। सेट सिलेक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बट इतना इतना भी आई वुड से इतना भी मिस्टेक नहीं होगा कि आपने जो पहला सीक्वेंस है ना, पहले 2 सेट 3 सेट वो सारे डिफिकल्ट कैटेगरी के रख दो, ऐसा नहीं होगा। वो रूट्स एंड नेटवर्क्स का जो मैंने सेट इंटेंशनली भी 4th पे रखा था, बिकॉज थोड़ा सा मुझे आइडिया लग रहा था कि ये थोड़ा सा ईजी होगा, है ना। और उसके क्वेश्चंस कीटा भी थे, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा, राइट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन को आपको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना है। एंड अगर आपने कितनी भी पढ़ाई की, अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नहीं करना, और कैसे इससे बाहर आना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आपने कितने भी मॉक्स दिए हो, आपका कितना भी स्कोर हो, इट वुड नॉट मैटर ऑन द D डे में आपको पता भी नहीं लगेगा कि व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर देयर अराउंड हंड्रेड्स ऑफ अदर कैट एस्पिरेंट्स इन फ्रंट ऑफ अ बिग कंप्यूटर डेस्कटॉप और बिग कंप्यूटर स्क्रीन, राइट। और ऐसी सिचुएशन तब आ जाएगी, राइट, देन यू वुड बी लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड सेट ऑफ चॉइसेस, राइट। और वहाँ पे आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है, राइट। और नर्वस मैं भी काफ़ी होता था, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता था, राइट। हाउ आई टैकल्ड दैट नर्वसनेस सिचुएशन वॉज जस्ट आई केम अप विद माई वे, राइट। मैं क्या करता था, आई यूज टू टेक 30 seconds ब्रेक इन बिटवीन द मॉक, ब्रेक एज इन आई यूज टू रिलैक्स ऑन माई चेयर एंड आई यूज टू हैव अ सिप ऑफ वाटर। वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता था, एंड आई यूज टू डू द सेम in the actual exams also, right। So it worked for me, there might be some other way which might work for you, है ना। keep trying the things in the next 3 months, right। now coming on to the daily targets, right। daily targets के लिए what you should do in the next 3 months, यार बेसिकली सिंपल सा फंडा बताता हूँ, है ना। रोज 5 सेट करो, कहीं से भी करो। इसका भी एक रीजन ये है कि देखो, कोई भी आपको सेट प्रोवाइड कर रहा है, 100% आई एम वेरी श्योर कि वो बंदा खुद सेट नहीं बना रहा होगा। दीज सेट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम CL, IMS, Time and Krakow। These are the 4 biggest and the only institutes that make good DLR sectionals, right। वो वहाँ से सोर्स हो रहा है, that means जो भी आपको सेट मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, right। that is the first thing। second thing is कि मेक श्योर अगर आप 5 सेट कर रहे हो तो उसको तसल्ली से करो। ऐसा नहीं है कि यार सेट को देखा, अच्छा ये तो मैं सोल्व कर लूंगा, और फिर उसको सोल्व नहीं किया, राइट। इवन इफ यू थिंक कि अच्छा दिस सेट इज वन ऑफ द इजिएस्ट सेट, but please solve it with the help of pen and paper, and make sure you are solving each and every question like you will be doing in the actual exam, right। plus अंडर टाइम प्रेशर करो। विदाउट टाइम प्रेशर अगर आप 100 सेट भी सोल्व करोगे, दैट माइट नॉट बी इक्विवेलेंट टू इवन 10 सेट्स विद द टाइमर, राइट। तो जितने भी सेट सोल्व करो, मैं आपको टारगेट देना चाहूँगा कि मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, डेली मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 इतने सेट्स करो, मोर देन इनफ है। टाइमर लगा के करो, मे बी 4 सेट इकट्ठे उठाओ और आप 40 मिनट का टाइमर लगाओ, देन टेस्ट योरसेल्फ कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कैसा नहीं कर रहे हो। बट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू व्हेन यू आर सॉल्विंग दोज सेट्स, राइट। क्रिएट
environment in your room or wherever you are giving the mock, like the actual exam, and imagine that you are sitting in front of desktop in the CAT exam center and you are appearing for the actual CAT, right? This will help you a lot in strategizing your final strategy for the LRDI. In the LRDI, no mentor can help you with the strategy, right? You have to evaluate yourself constantly. You have to evaluate where you are going wrong, where you are going right, and accordingly you have to make the best strategy for you, right? So this is the daily target, 4 or 5 mocks, sets per day, right? Apart from this, try going through their video solutions or the text solution. Video solution मिल जाए तो best है, right? नहीं तो text solution से भी go through करो and check if you have missed some important information or if you have missed some important approach. That can reduce the time significantly, right? Apart from just seeing the solution of those sets, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ solution देख लेते हैं. सिर्फ solution नहीं देखना, solution के साथ साथ आपको एक चीज़ और इंश्योर करनी है, वो चीज़ है आपकी सेट सिलेक्शन की. आप सोचो आराम से कि अगर मैं कुछ सेट सिलेक्शन कुछ और तरीके से करता, अगर मॉक में मैं ये नहीं करता, इफ एंड बट्स करो अपने साथ, राइट? ट्राई evaluating yourself from 100 POVs, right? Then question yourself ki whether I'm going on the right path or whether there could have been something different which could reduce your time and could have improved your score also, right? वो भी एक बार डिस्कस करो, वो भी अपने साथ अपने आप से पूछो कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा. Again I'm saying approach is more important, strategy is more important than the number of sets you are solving. The reason being CAT में 100% नया सेट आएगा, 100% आप वहाँ पे अकेले होगे, 100% आपका जो एक्सपीरियंस है वो साथ जाएगा. आपको याद नहीं रहेगा कि 2 महीने पहले आपने कौन सा सेट सोल्व किया था और वो सेट कभी भी रिपीट भी नहीं होगा, राइट? एकदम प्योर नया लॉजिकल सेट बनेगा, है ना? देन यू हैव टू सी कि उस सेट को वहाँ पे बैठ के आपको कैसे टैकल करना है. तो एवरी डे सी योर सेल्फ, इमेजिन योर सेल्फ sitting in the CAT exam center and solving the DLR section for 40 minutes. That might help you to have a taste of real CAT exam scenario, right? ये फॉर फ्रेशर्स के लिए भी, रिपीटर्स के लिए भी सेम चीज़ें, राइट? एंड ऑल्सो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 सेक्शनल पर वीक, 1 सेक्शनल पर वीक और मे बी 1 मॉक पर वीक. अगर 1 मॉक दे दिया तो सेक्शनल की ज़रूरत नहीं है, राइट? और फिर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी मैं मॉक्स कैसे दूं, क्या स्केड्यूल होना चाहिए, राइट? अभी अगर आपने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ ली हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए सभी को, राइट? एनीवेज, आपने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ ली हैं वहाँ पे एक स्केड्यूल आता है कि मॉक इतने बजे रिलीज़ होगा, इतने टाइम पे, इतनी डेट को, and the window period will be there for 3 or 4 days, right? Try to appear for the mocks in the actual window period only, otherwise you will keep piling up mocks and mocks and mocks, and by the time of October you might have a lot of mocks and you might not have a lot of time to appear for all those mocks, right? Plus all the 3 sections require consistent efforts, constant evaluation, consistent inputs, outputs, कंसिस्टेंट मेंटरशिप फ्रॉम योर मेंटर्स. तो वो अगर आज से ही स्टार्ट करोगे देन इट विल रिफ्लेक्ट इन योर कैट स्कोर. कैट के 1 महीना पहला स्टार्ट करोगे तो इट माइट नॉट हेल्प अ लॉट, राइट? तो LRDI के लिए हमारा बेसिकली यही प्लान था, 5 सेट्स दिन के, 1 मिनिमम मॉक सेक्शनल, राइट? बिलीव मी, बस इतना ही सिंपल प्लान है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना. ये बहुत बड़ा प्लान है, बिलीव मी. दिस माइट साउंड लाइक अ वेरी स्मॉल प्लान, बट ये अगर आप रोज़ करोगे इसको तो ये रोज़ करना बहुत मुश्किल है, राइट? दोज who will be able to achieve these targets in the next 3 months, believe me, in the just 1 month you will see improvement in your approach and in your scores also. बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कहीं भी कोई भी मॉक में बैठो, फर्स्ट हैव अ गुड एनवायरनमेंट अराउंड यू, सेकंड इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन द CAT एग्जाम सेंटर, थर्ड ऐसा नहीं है कि मॉक बीच में बंद कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एक्चुअल उसमें एफर्ट डालने हैं. एंड एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि इट डजेंट मैटर इन द LRDI कि आपने कितने मंथ्स की पहले प्रिपरेशन कर रखी है. व्हाट मैटर्स इन द LRDI कि वहाँ पे आप क्या स्कोर कर रहे हो, कैसे स्कोर कर रहे हो, कौन सी अप्रोच लगा रहे हो, कौन सा सेट सोल्व कर रहे हो. फोर्थ इज कंसिस्टेंसी, राइट? कंसिस्टेंसी नहीं है स्कोर में. अगर आपका कभी कभी 99 आ रहा है, कभी 90 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, कभी 95 आ रहा है, देन नेवर एवर यू विल बी श्योर कि आपका CAT में क्या स्कोर आ रहा है या क्या स्कोर आ सकता है, राइट? इफ़ यू आर हैविंग लिटिल फ्लक्चुएशंस कि ठीक है कभी कभी 95 आ रहा है बट मेजरली आपका 95 प्लस आ रहा है, then you can say कि ठीक है there is a good chance that you will score around 98, 99 in the actual CAT. But if you are getting a lot of fluctuations, please discuss with someone कि why you are having these fluctuations and how you can stabilize that, right? So this is all from my side for the LRDI, because this is all what I did during my phase of preparation, right? I scored 99.9 and 99.99 in the LRDI in CAT 2022 and in CAT 2023, right? So whatever I said in the last 24 minutes, it came from experience, it came from practice, it came from my teaching experience, it came
from discussion with a lot of CAT aspirants on a daily basis, right? So I think all of you must be able to relate with this, right? अगर आपको ऐसी videos और भी चाहिए जहाँ पे आई एम डिस्कसिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सेक्शन और अबाउट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ आई रिसीव गुड नंबर ऑफ कमेंट्स, राइट, आई विल श्योरली स्टार्ट मेकिंग सच वीडियो सून, राइट. काफ़ी लंबी वीडियो हो गया 25 मिनट्स की. ऑल्सो देर इज़ वन अनाउंसमेंट, वी आर कमिंग अप विद द LRDI 99 booster. The course is starting from 1st of September, where we will be covering everything from basics to advanced, including 400 plus sets in a quiz format in time, under the time pressure, with the video solutions, right? All the sets we will be covering would be of CAT level only, right? We are not covering basic sets. Obviously we are covering a lot of topic wise sets also, right? Around 30 sets for the set theory, 30 plus sets for the games and tournaments, right? And 300 sets of the CAT level, right? So I will be giving you daily targets, weekly targets, and sectionals also, right? And we will have mindset building sessions in that course. So if you're looking for such course, just go on our website www.roadtocat99.in, right? The course is just at 2899. The course price will increase from 1st of September, right? It will increase to 3299, right? So if you're looking for either quant course or LRDI course, just go on the website and enroll. If you want any other help, just comment it in the comment section, right? And we have also created one new Telegram group for all the CAT aspirants where we are discussing a lot of stuff. So if you want to be a part of that group, just check out the description and join our free CAT prep group. Thank you.